again I am here with our new lecture, that is lecture number 3 of the same chapter, nutrition in plants. So in the last lecture we have learned about the autotrophic nutrition. लास्ट लेक्चर में हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड अबाउट फोटोसिंथेसिस पढ़ा था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं. द प्लांट्स दोज हु आर ग्रीन इन कलर एंड दे हैव क्लोरोफिल, they are able to make their own food. This process of nutrition is known as autotrophic nutrition, and the process by which food is prepared in the green plant is known as photosynthesis. So let's start some other mode of nutrition, because all are not able to make their own food. सभी अपना food खुद नहीं बना पाते हैं. Like human and animals and some plants also, we are dependent for our food on the green plants, because some plant, those who are not green in color, जो green color के नहीं हैं, वो अपना food खुद नहीं बनाते हैं. So let's start other mode of nutrition in plants. Some other mode of nutrition in plants are, these are the parasitic nutrition, saprophytic nutrition, symbiosis and insectivorous plants. चलिए एक एक करके पढ़ते हैं. There are some plants which do not have chlorophyll. कुछ ऐसे plants होते हैं जिनके पास chlorophyll नहीं पाया जाता है. It means they are not green in color. So if they are not green in color, they didn't have chlorophyll. So they are not able to trap sunlight. तो वो sunlight को, solar energy को trap नहीं कर सकते और अपना food भी खुद नहीं बना पाते हैं. They cannot synthesize their food. So when the chlorophyll is not present, photosynthesis doesn't occur. So they cannot synthesize their food. जब उनके पास chlorophyll नहीं है, photosynthesis नहीं होता, तो वो अपना food भी खुद नहीं बना पाते हैं. How do they survive and from where do they derive nutrition? So the question is then how they survive and how they take nutrition if they are not able to make their own food. कि अगर उनके पास अपना उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, तो आखिर वो अपना न्यूट्रिशन पाते कहाँ से हैं. Like human and animals, such plant depends on the food produced by. Like human and animals, such plant depend on the food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. तो ह्यूमन और एनिमल की तरह वो प्लांट्स भी अपने फूड के लिए ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. जब फूड के लिए हम या प्लांट्स दूसरे सोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं, so that is known as the heterotrophic mode of nutrition. So in the sequence of the heterotrophic nutrition, one by one we are going to learn about the insectivorous plant, parasitic plant, saprophytic plants and symbiosis. Next is insectivorous plant. तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, insectivorous means those who eat insect. प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाकर अपने फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, उन्हें insectivorous plants कहते हैं. So why they eat insect? If they are green in color, they are able to make their own food. So every time plants cannot eat insect because of the requirement of the food. हर बार plants food की requirement के लिए ही insect को नहीं खाते हैं, बल्कि नाइट्रोजन के लिए, जो नाइट्रोजन की ज़रूरत प्लांट को ग्रोथ के लिए होती है. If they are not able to absorb it from the soil, then they eat the insect to fulfill the requirement of nitrogen. जब उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती है सॉइल से नाइट्रोजन की, तो वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उन्हें खाते हैं और अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करते हैं. सी इट्स एग्जाम्पल ऑफ insectivorous plant, that is known as a pitcher plant. Okay, the pitcher like structure is the modified part of the leaf. pitcher like structure देखिए, ये लीफ जो है वो मॉडिफाई हुआ है. कैसा? एक पिचर जैसे स्ट्रक्चर में, एक कीप जैसे स्ट्रक्चर में, जिसमें एक लिड है. ठीक है. When insects sit, जब इंसेक्ट्स यहाँ बैठते हैं तो ये लिड क्या होता है? बंद हो जाता है, और इंसेक्ट अंदर पिचर लाइक स्ट्रक्चर में आके ट्रैप हो जाते हैं. एंड बिटवीन द पिचर लाइक स्ट्रक्चर दे हैव सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच इज डाउनवर्ड. हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि नीचे की ओर झुके होते हैं. इंसेक्ट जैसे इसमें आता है वो हेयर्स में इंटेंगल्ड हो जाता है, फंस जाता है. एंड देन व्हाट हैपेंस? देन सम एंजाइम सिक्रीटेड बाय द हेयर्स. फिर कुछ एंजाइम्स हेयर से सिक्रीट होते हैं और इस पूरे पिक्चर में उस पूरे इंसेक्ट का डाइजेशन हो जाता है.
and the requirement of the nitrogen which is needed for the plant for the growth is also fulfilled. और जो नाइट्रोजन की ज़रूरत प्लांट को अपने ग्रोथ के लिए होती है वो भी पूरी हो जाती है. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. See, this is a lid. When insects sit on the pitcher like structure, the lid closes and insect come into the pitcher like structure. Inside the pitcher there are hair which are directed downward. अभी बताया कि पिचर के अंदर जो hair like structure होते हैं वो नीचे की ओर downwards होते हैं. When an insect land in the pitcher, the lid closes and the trapped insect get entangled into the hair. और इसी hair like structure में entangled means entangled क्या होता है मतलब फंस जाना. इंसेक्ट जो होते हैं वो फंस जाते हैं. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. और इसी में से digestive juice का secretion होता है और pitcher like structure में digestion हो जाता है. Such insect eating plants are called insectivorous plant. और ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं. नेक्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासाइट किसे कहते हैं? जो किसी पे आश्रित होते हैं, उनसे अपना फूड लेते हैं, लेकिन जिस पे आश्रित होते हैं उसे होस्ट कहते हैं, और जिस पे आश्रित होते हैं उन्हें किसी भी तरह का फायदा नहीं पहुंचाते, सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं. दीज आर नोन एज द पैरासाइट्स एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द पैरासिटिक न्यूट्रिशन. A plant called Cuscuta, commonly called Amarbel. It does not have chlorophyll. It's white in color. It's not green in color. So green नहीं होते, it means they didn't have chlorophyll. आपको बताया मैंने. तो अगर chlorophyll नहीं है तो वो अपना food खुद नहीं बना पाते हैं. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. तो वो जिस green plant पे climb करते हैं, चढ़ते हैं, जिन पे आश्रय लेते हैं, shelter लेते हैं, उसी से अपना food भी लेते हैं. The plant on which it climb is called host. See कि ये white वाले flowers जो है वो इस पेड़ पे climb किए, चढ़े हैं, ओके, और जो जिस पे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं. और जो इन पे आश्रित है उन्हें क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं. Since it deprives the host of valuable nutrient, तो ये होस्ट के जो valuable nutrients हैं, जो ज़रूरी nutrients हैं, उसको क्या करते हैं? खा लेते हैं. इट इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? उनके हिस्से का भी खा लिया है ना, तो क्या हुआ? होस्ट को नुकसान हुआ. सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पैरासाइट्स. और जिससे इन्होंने फूड लिया, दीज आर नोन एज होस्ट. So its concept is clear that what is parasitic nutrition? When plants take food from the other plants, so this nutrition is known as the parasitic nutrition, and only the parasites are benefited, the hosts are not benefited in this relationship. So that's why it is known as the parasitic nutrition. It's clear? So come on the next topic. Next is saprophytic nutrition. What is the meaning of the saprophytic nutrition? When the plants take nutrition from the dead and decaying matter, this type of nutrition is known as saprophytic nutrition. जब plants अपना food सड़ी गली चीज़ों से लेते हैं तो इस mode of nutrition को saprophytic nutrition कहते हैं. This mode of nutrition in which organisms take in nutrients in solution form, dead and decaying matter is called saprophytic nutrition. Plant which use saprotropic mode of nutrition are called saprotrophs. और जो ऐसी चीज़ों से अपना फूड लेते हैं उन्हें saprotrophs कहते हैं. ओके, आपने बरसात के दिनों में देखा होगा कि बड़े पेड़ों के नीचे या इन द क्रेविसेस ऑफ द वॉल्स, दीवार की दरारों में कभी कभी कुछ पैचेस जैसे, छत्ते जैसे, मशरूम जैसे स्ट्रक्चर निकल जाते हैं. दीज आर एक्चुअली फंजाई एंड दे ग्रो ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर. जहाँ पे भी बड़े पेड़ की पत्तियाँ, फूल या उनकी टहनियाँ गिरी हैं और वो when they come in the contact of the nature with the contact of the sunlight, moisture and they start decaying और वो सड़ने लगते हैं, तो इन सड़ी गली चीज़ों में ही वो ग्रो कर जाते हैं फंजाई. तो इन्हें क्या कहते हैं? इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं. और ऐसे फंजाई को या ऐसे प्लांट्स को जो ऐसी सड़ी गली चीज़ों से अपना फूड लेके ग्रो करते हैं उन्हें सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं. दीज आर नोन एज द सैप्रोट्रॉप्स. दिस इज एग्जाम्पल. यू हैव सीन इन योर होम दैट इन द ब्रेड, कि ब्रेड में कभी कभी जब मॉइस्चर आ जाता है, नमी हो जाता है, या आप ब्रेड को ओपनली छोड़ देते हैं कुछ दिनों पे, तो उसमें कुछ ग्रीन और वाइट पैचेस फॉर्म हो जाते हैं. दीज आर एक्चुअली फंजाई.
और वो अपना फूड किससे ले रहे हैं? सड़ी गली चीज़ से। ये ब्रेड जब 2-3 दिन तक सड़ जाता है तो उसमें वो आसानी से अपने न्यूट्रिएंट को खोज के और आसानी से ग्रो करते हैं। सी दिस इज द फिगर of the fungi which grow on the bread. Fungi also grown on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. Pickles अचार में आपने देखा है कि थोड़ा सा भी मॉइस्चर आ जाता है, पानी आ जाता है तो खराब हो जाता है अचार, कुछ वाइट कलर के धब्बे से पड़ जाते हैं. These are actually fungi. On the leather article you have seen that they based on the hot and humid atmosphere, so the leather articles also start decaying and white patches are formed, even our clothes also. So these all take food, means ये fungi जो इन चीज़ों पे, pickles पे, leather पे, clothes पे grow करते हैं, तो ये सारी चीज़ें सड़ी गली चीज़ें पे वो आराम से सर्वाइव करते हैं. तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, एंड दे आर मीन्स द fungi are known as the saprotrophs. Next is symbiosis. What is symbiosis? Symbiosis आपने 6 में पढ़ा है कि about the lichen, कि lichen is a combination of algae and fungi. You know that algae or alga are green in color. See, this is the patches of algae and fungi are white in color. When algae are green in color, it means they are able to make their own food. And fungi are white in color, it means they are not able to make their own food. But you have seen that fungi are also always able to absorb the water and mineral. वो हमेशा नमी वाली जगहों पे ग्रो करते हैं. इट मीन्स कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं. ठीक है, तो when this combination occurs in symbiosis, it is a relationship or a partnership between two organisms in which both partner get benefited from each other. एक ऐसा पार्टनरशिप है जिसमें दोनों ही जो प्लांट्स हैं दोनों ही बेनिफिटेड होते हैं, दोनों ही पार्टनर को लाभ होता है एक दूसरे के साथ रहने से. जैसे एल्गी ग्रीन कलर के होते हैं, दे मेक फूड, एंड फंजाई आर नॉन ग्रीन इन कलर, सो दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल. ये वाटर और मिनरल एल्गी को देते हैं, जो कि एल्गी की मदद करता है फूड की प्रिपरेशन में. तो एल्गी के बदले में फंजाई को खाना देता है, तो दोनों ही एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है. एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द एल्गी एंड फंजाई आर नोन एज द lichen. Lichen is a combination of an alga and a fungus, in which the singular form of the algae is alga and the singular form of fungi is fungus, in which the fungus provide water and mineral. Fungus क्या देता है? water और mineral देता है. देता किसे? algae को, to the alga, whereas the alga supplies organic food to fungus. और इसके बदले में जो alga है वो fungus को खाना देता है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सिम्बियोसिस? दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सिम्बियोसिस में क्या अंतर होता है? फर्स्टली वी हैव लर्न अबाउट द इंसेक्टिवोरस प्लांट. तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में प्लांट को बेनिफिट होता था, इंसेक्ट को बेनिफिट नहीं होता है. वाई? इंसेक्ट को तो प्लांट खा जाता है, तो बेनिफिट क्या हुआ? ओनली वन पार्टनर इज बेनिफिटेड. नेक्स्ट वी हैव लर्न अबाउट द सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सो दे टेक देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर. And the parasitic nutrition, in parasitic nutrition only one partner is benefited. केवल पैरासाइट बेनिफिटेड होता है, होस्ट को किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं होता है. बट इन दिस रिलेशनशिप मीन्स इन सिम्बियोसिस both the partners are benefited. See, this is lichen and both are benefited. Algae is also benefited by the fungus and fungus are also benefited by the algae. तो जब दोनों को ही लाभ होता है, दोनों को ही बेनिफिट होता है, सो दिस रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बियोसिस. सो द other mode of nutrition is completed now. Now come on the next topic, that is how nutrients are replenished in the soil. कि अभी तक आपने पढ़ा कि जो भी न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में पाए जाते हैं, प्लांट्स उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रो करते हैं, फिर हार्वेस्टिंग होती है या वो कट जाते हैं, फिर नए प्लांट्स उगाए जाते हैं, या हमेशा प्लांट्स में फ्रूट्स या वेजिटेबल है तो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, व्हाटएवर. तो आखिर उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते रहने से क्या उन न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती होगी जब प्लांट्स यूज़ करते हैं. तो आखिर वो रिप्लेनिश मीन्स दोबारा. ठीक है, कैसे उन्हें दोबारा, मिट्टी को ये न्यूट्रिएंट्स दोबारा कैसे मिलते हैं? Have you seen farmers spreading manure or fertilizer in the field or gardeners using them in lawns or in pots? You have seen, आपने देखा होगा कि गार्डन्स में, लॉन में या पॉट में जो फार्मर्स होते हैं, अगर उन्हें कुछ बोया है तो उसमें खाद या फर्टिलाइजर
डालते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर? Manure is prepared from the organic material and fertilizers from the inorganic. And fertilizer is nutrient specific. कि मान लिया किसी जगह की मिट्टी में सिर्फ नाइट्रोजन की कमी है तो सिर्फ नाइट्रोजन को ऐड किया जा सकता है. बट मैन्योर इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. मैन्योर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता है. जो हमारे घरों से वेजिटेबल पील्स या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस निकलते हैं, आपने कंपोस्ट पिट भी पढ़ा है, तो अगर उन्हें एक जगह पे कलेक्ट करके उन्हें छोड़ते हैं, दे कम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सनलाइट, सो दे कन्वर्ट इनटू द मैन्योर. तो वो खाद में परिवर्तित हो जाते हैं. डू यू नो वाई दे आर एडेड टू द सॉइल? कि अगर आपने देखा है कि मैन्योर और खाद डालते हैं तो डालते किस लिए हैं? यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सो द अमाउंट ऑफ द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. तो आपने सुना है, पढ़ा है, देखा है कि जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं. तो लगातार जब मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है तो एक समय आता होगा जब भी उन मिनरल्स की मिट्टी में कमी हो जाती है. Fertilizer and manure contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. इन मिनरल्स के अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जो फर्टिलाइजर और मैन्योर में पाए जाते हैं. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. और समय समय पर इन न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है जिससे मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स की कमी ना होने पाए. We can grow plants and keep them healthy if we can find out the nutrient requirement of plant. We can grow plant and keep them healthy if we can find out the nutrient requirement of plant. अगर हम प्लांट की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत को, कमी को पूरा करते रहेंगे तो हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो भी करेंगे और हेल्दी भी रहेंगे. यूजुअली क्रॉप रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन. ज़्यादातर जो फसल होती है उनको ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है. वाई? बिकॉज दे कन्वर्ट दीज नाइट्रोजन इनटू द प्रोटीन्स, क्योंकि वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं. आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन. तो जब फसल उग जाती है और उनकी हार्वेस्टिंग होती है, कटाई हो जाती है, तो उस जगह की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन कर चुके होते हैं. Though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it the manner they can use carbon dioxide. कि नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, लेकिन प्लांट्स उन्हें वैसे यूज़ नहीं कर पाते जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ईजिली यूज़ करते हैं. वाई? बिकॉज दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म, क्योंकि उन्हें नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होता है. एंड नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म. और नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे प्रेजेंट है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है. द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन पीक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म. हमारे एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया है जो कि पाया जाता है रूट नोड्यूल्स में, जड़ों में पाया जाता है. उन नोड्यूल्स में जो राइजोबियम पाया जाता है वो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन को सिंपलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है. बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. लेकिन राइजोबियम अपना फूड खुद नहीं बना पाता. सो इट लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पीज, मूंग एंड बीन्स. तो ये इन सभी में, ग्राम में, चने में, मटर में, मूंग में, बीन्स में पाए जाते हैं. तो प्लांट्स इन्हें रहने की जगह देता है और फूड देता है, एंड इन रिटर्न द राइजोबियम गिव देम नाइट्रोजन. नाइट्रोजन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एटमॉस्फेयर में है, राइजोबियम उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है और प्लांट उसे आसानी से यूज़ करते हैं और अपने उन ग्रोथ के लिए भी यूज़ करते हैं. एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन. सम ऑफ द पल्सेस, दाल, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट. लेग्यूमिनस प्लांट से मिलते हैं जितने भी पल्सेस होते हैं. इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड, और इसके बदले में प्लांट बैक्टीरिया को खाना और रहने की जगह देता है. सो व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज दिस? दिस इज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. ओके, ये कैसा रिलेशनशिप है? सिम्बियोटिक. दोनों को ही बेनिफिट है. लेग्यूमिनस प्लांट को राइजोबियम से नाइट्रोजन मिलता है और राइजोबियम को इसके बदले में फूड और रहने की जगह मिलती है. सो आई होप all the topics are clear. So this chapter is completed now. Next lecture में हम next chapter शुरू करेंगे. तब तक के लिए happy learning. Thank you.